ইভিএমক লৈ ইণ্ডিয়াত ফাট ইভিএম বিৰোধী যুঁজত অকলশৰীয়া কংগ্ৰেছ সহযোগী দলে সংগ এৰিছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে হততে কংগ্ৰেছৰ লগতে আন বিৰোধী দলসমূহে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰাটো পৰিলক্ষিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে পুনৰ ইভিএমৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে গোট আৰু এনচিপি শাৰদ পাৱাৰ গোট প্ৰথম অৱস্থাত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰায়বোৰ দলে ইভিএমৰ সমালোচনা কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইভিএমক লৈ দেখা গৈছে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত ভাঙোন প্ৰথমে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ নাকচ কৰাজন হ'ল ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা তথা জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লা কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি উমৰে কয় যে যদিহে ইভিএমৰ ওপৰত বিশ্বাসেই নাই তেন্তে নিৰ্বাচন খেলিবই নালাগে I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs, and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight. And if I win, then I'll keep quiet. Okay. But if I lose, then something's wrong with the machines. উমৰ আব্দুল্লাৰ পাছতে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছেও ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ সম্ভাৱনা নাকচ কৰিছে যদিহে ইভিএম টেম্পাৰিং সম্ভৱ তেন্তে কংগ্ৰেছক তাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ ক'লে টিএমচি নেতা অভিজিত বেনাৰ্জীয়ে मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल राय है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूँ मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17 सीट जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है ईवीएम हैक हो सकता है तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है और अगर वो भी नहीं कर सकते इसको लेकर नीचे आंदोलन करते भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है অৱশ্যে আন মিত্ৰদলসমূহে ইভিএমৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও সৰব হৈ আছে ये बात तो सत्य नहीं है हेमंत सोरेन जी ने सरकार जब बना रहे थे तभी भी उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम नहीं होता हम और सीट जीत लेते आज खुद अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर वो 80 से 80 सीट भी जीत लें फिर भी वो ईवीएम का विरोध करेंगे महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर जश्न नहीं बना रही है उससे स्पष्ट और जनता के मन में ये आक्रोश है जनता के मन में ये फीलिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कर रही है जहां गांवों में वो मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हो अगर वो खुद कोशिश करें तो उनको रोका जा रहा है एक गठबंधन है उससे ज्यादा वोट लाने वाली संख्या कह रही है कि ईवीएम सही नहीं है तो आप इसको देश को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लेंगे न इसलिए आप नहीं बोलते हैं चुनाव आयोग इसको तो हम लोग जा रहे हैं और प्रूव्ड भी करेंगे कि कैसे हैक होता है ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ একাংশ অংশীদাৰী দলে সংগ এৰিলেও কংগ্ৰেছে এতিয়াও ইভিএমৰ বিৰোধিতা কৰি আছে देखिए मैं इसे विचारहीनता मानता हूँ और निश्चित रूप से बहुत सारे अलायंस पार्टनर हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है अभी हमारी कार्य समिति की बैठक भी हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हमारे जो लाइन थे बहुत क्लियर है और जो हमने ये कहा था कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका जो वीवीपैट है जो उसके मिलान की जो बातें होती है तो वो उसमें कहीं कोई ये की बात नहीं है कोई शक की बात नहीं है एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ईवीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण वो ईवीएम तो महत्वपूर्ण हमारे लिए है लेकिन उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं जो प्रशासनिक मशीनरी है उनके जो रवैया है वो आज भी कहीं न कहीं शक के दायरे में है
ওমৰ আব্দুল্লা আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ স্থিতিৰ পাছতে কংগ্ৰেছক ইভিএমৰ সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে আত্মসমালোচনাৰ পৰামৰ্শ দিছে বিজেপিয়ে। उनके एलाइज पार्टी ही आज कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस के नीति पर कांग्रेस को स्वयं विचार करना चाहिए। अपने हार का ठिकरा ईवीएम मशीन पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर फोड़े। ये तो ठीक है, मैं इतना कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन में जाए, सुप्रीम कोर्ट में तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सब इंडिया अलाइज का गठबंधन के जो लोग हैं नेता है वो भी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कम से कम अभी समझ आना चाहिए मिस्टर राहुल गांधी, आई ओनली प्रे द गॉड टू गुड सेंस प्रिवेल अपॉन। थैंक यू। কেৱল ইভিএমেই নহয়, আদানী ইছ্যুক লৈও ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত ভাঙোন দেখা গৈছিল। সংসদৰ বাকিৰত আদানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা নাছিল কেইবাটাও অংশীদাৰী দলে।